the Land Acquisition Act is now in use again. I mean, what's your opinion? Well, the standing committee has given its recommendation. The land acquisition bill, again, this is something that Rahulji pioneered and championed in the wake of what happened in Bhatta Parsol and in all these places. It was he who really pushed for this initiative, for the repeal of a 117-year-old act, in 1894. Land Acquisition Act, and what this land acquisition bill does is it facilitates land acquisition, which is essential for industrialization and urbanization, but does it in a manner that provides fair and equitable compensation to landowners as well as to livelihood losers. So I think it's a balance. It's a balance between acquiring land, which we need to do for industrialization and urbanization, and for ensuring that the land acquisition is done in a process that is fair to the landowner and the livelihood loser. Is it striking that balance between? I think the bill is striking that balance. Of course, there are people, there are many people who thought that the bill I presented was very anti-industry. But now, many people are saying that the Standing Committee's report is anti-industry, and my bill was actually far more positive than it was given credit for early. So, these are all हवा बदलते रहते हैं, राहें भी बदलते रहती हैं. What kind of impact is Aadhaar going to have on rural development? Oh, Aadhaar is very important, and I think Rahul ji is one political leader who has really, taken it up as a real cause. And Aadhaar, I think the low-hanging fruit of Aadhaar, in the next few months, there are three things that Aadhaar can do. It can deliver pensions to people directly, it can deliver scholarships to students, and it can deliver, say, Narega wages. I think so. There is a low-hanging fruit in Aadhaar. But Aadhaar by itself does not solve the problem. You have to restructure and re-engineer the process. And Aadhaar only becomes the instrument. Aadhaar is not the end objective. Aadhaar is only the end instrument. So we have to re-engineer the funds flow. For example, to give you a concrete example, today the pensions. We are supposed to give, say, 200 rupees a month. The pensioner never gets 200 rupees a month. He gets or she gets 1400 rupees once in 7 months. That is not what we want. We want every day, the first of every month, the old person over the age of 60 should get a pension. Now that is possible only through Aadhaar, where you send the money to a state government, and from the state government it goes directly into the bank account. सबसे बड़ी बात पिछले 5 सालों के अंदर, या अगर पिछले 7-8 सालों की बात करें, तो ग्रामीण भारत में देश की प्रगति का कितना, क्या उसका फायदा ग्रामीण में? देखिए, 2 ऐसे कार्यक्रम हैं, ध्वजवाहिनी कार्यक्रम, जिसका बहुत सकारात्मक असर हुआ है, बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम रहे हैं. एक तो महात्मा गांधी नरेगा से तो बिल्कुल ग्रामीण भारत में एक, मैं कह सकता हूँ कि बहुत साइलेंट क्रांति आया है, और जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीब हैं, उनको रोज़गार मिला है, मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा है, जो संकट प्रवर्जन हुआ करता था उड़ीसा, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हर साल, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहते हैं, संकट प्रवर्जन, वो घटा है. सामूहिक संपत्तियाँ, जो सामुदायिक संपत्तियाँ हैं, कम्युनिटी एसेट्स, वो उनका वो भी स्थापित किए गए हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि वंचित वर्ग जो हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं या महिला हैं, उनका सशक्तिकरण हुआ है. वो देख पा रहे हैं कि भाई हम भी किसी और से कम नहीं हैं. वो खड़े होकर अपने पैरों पर कह सकते हैं. मैं आपको मिसाल के तौर एक उदाहरण देता हूँ. सुशील कुमार, जो कौन बनेगा करोड़पति, उनको वो जीते थे वो टीवी पर, तो हम लोगों ने उनको, वो नरेगा में काम करते हैं, वो कंप्यूटर ऑपरेटर, तो वो मोतिहारी में काम करते हैं. मैंने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और मीडिया ने उनसे पूछा, सुशील कुमार जी, आपकी राय में नरेगा से क्या परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है आपके गाँव में? उन्होंने कहा कि नरेगा के पहले हमारे गाँव में 2 दुकान हुआ करते थे. वहाँ महिलाएँ जाती थी और वो कुछ गिरवी रखती थी, और उनको दुकानदार पैसा देता था, और वो ऋण चले जाते थे और उनको सामान खरीदते थे. आज उसी गांव में 6 दुकान हैं. महिलाओं के पास पैसा है, साड़ियाँ पहनती हैं, गहने पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं और जाती हैं, और अभी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये परिवर्तन आया है नरेगा से. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बसावटें हैं, बसावटें को कनेक्टिविटी मिली है. बारिश आए ना बारिश नहीं आए, ऑल वेदर कनेक्टिविटी. हर साल ब्लैक टॉप रोड, काले रोड, ग्रामीण भारत में 3.5 लाख किलोमीटर टार रोड बनाए गए हैं. तो ग्रामीण भारत में ज़रूर क्रांति आई है. और सबसे बड़ी बात यह है, परिवर्तन ये है कि कमज़ोर वर्ग के लोग, वंचित लोग, गरीब परिवार के लोग, उनमें एक नया भविष्य देखने की संभावना उनमें आई है.
पीएमजीएसवाई क्या करने का विचार है? पीएमजीएसवाई का काम जो बसावटें हैं 500 के ऊपर की बसावटें, उनके लिए कनेक्टिविटी देने का काम है। और जो शेड्यूल 5 एरियाज़ हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ 250 के ऊपर की आबादियों को लिया जाता है। तो अभी काम बाकी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम जैसे राज्यों में अभी काफ़ी काम बाकी है। 70% काम हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2015 या 2016 तक पीएमजीएसवाई का पहला चरण ख़त्म होगा। उसके बाद में ये छोटे छोटे जो बसावटें हैं उनको भी लिए जाएंगे। अच्छा, भारत निर्माण में कुल मिलाकर आप कितने संतुष्ट हैं अभी तक? जो भारत निर्माण का तो ज़रूर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, सकारात्मक नतीजे निकले हैं। मैंने आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मिसाल मैंने दिया, पेयजल कार्यक्रम वहाँ बनाए गए हैं। आज आप ग्रामीण भारत में देखिए, सबके पास मोबाइल है। मैंने कहीं हंसी मजाक में कहा था और सब महिलाएं मुझ पर कूद पड़ी। मैंने कहा था शौचालय कम है हमारे देश में और मोबाइल ज़्यादा है। हमारे देश में देखिए हमारे देश अजीब देश है जहाँ 70 करोड़ मोबाइल फ़ोन है या 80 करोड़ मोबाइल फ़ोन है, पर मुश्किल से आपको शौचालय आपको देखेंगे, मुश्किल से 10% ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम पंचायत है। आज भी ग्रामीण भारत में 60% महिलाएं को शौचालय उपलब्ध नहीं है, पर मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है। तो ये अजीब सा दृश्य आज को आपको ग्रामीण भारत में, एक तरफ आधुनिक ग्रामीण भारत, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, डिश एंटेना, अच्छे कपड़े, स्कूल, मोटरसाइकिल। आजकल मोटरसाइकिल ग्रामीण भारत में बहुत देखने को मिलते हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब मोटरसाइकिल देखते नहीं, आज हर कस्बे में मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल। मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर में, मैं 30-25 साल पहले मैं उद्योग मंत्रालय में था और उद्योग मंत्रालय में हम लोग लाइसेंस दिया करते थे और सिर्फ हम स्कूटरों को लाइसेंस दिया करते थे, मोटरसाइकिल का कोई डिमांड नहीं था। 25 साल बाद स्कूटर आपको रास्ते पर नहीं दिखाई देता, सिर्फ मोटरसाइकिल देख रहे हैं। ये सब ग्रामीण भारत के ये वजह से ये सब हो रहा है। बाजार जो है आज ग्रामीण भारत में है, शहरी भारत में नहीं है। नरेगा के कारण से काफ़ी इसमें नरेगा से, पेयजल के कार्यक्रम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए आज बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, हालांकि स्कूल में अध्यापक नहीं है, ये बात सिरदर्द है। स्कूल में तो बच्चे आते हैं, अध्यापक नहीं है, पर स्कूल बच्चे में चाइल्ड लेबर घट रहा है, महिलाएं कम काम कर रही हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है। ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं अभी पढ़ने के लिए स्कूल जा रही हैं या कॉलेज जा रही हैं। ये अच्छी बात है, ये सकारात्मक है। तो मतलब आने वाले समय में जो अगली जनरेशन में महिलाएं होंगी, पढ़े लिखे हैं, वो सब वर्कफोर्स आज देखिए बिल्कुल नहीं, कुशलता बनाने की ज़रूरत है, कुशल रोजगार देने की ज़रूरत है। हम ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ गड्ढा खोदो, मट्टी निकालो, आपने रोजगार कह दिया, अभी गड्ढे में वापस मिट्टी डालो, वो भी रोजगार है। ऐसे रोजगार की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कुशल रोजगार की ज़रूरत है, ताकि लोगों को हम ट्रेन करें। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार उदाहरण देता हूँ। एक केंद्रपाड़ा ज़िला है उड़ीसा में, एक गांव है वहाँ पट्टमुंडई। पट्टमुंडई से हिंदुस्तान के सारे प्लम्बर आते हैं। आप दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, कलकत्ता में जाइए, मद्रास में जाइए, कहीं भी जाइए, चेन्नई में जाइए, और आप आपके नल वाले को पूछिए आप कहाँ से हैं, वो बोलेगा मैं केंद्रपाड़ा से हूँ। सारे के सारे वो पट्टमुंडई गांव से हैं। पर आपको कहीं प्लम्बर का किट दिखाई देता है? हर एक प्लम्बर अलग से स्क्रू ड्राइवर, अलग से प्लायर, उसके पास कोई स्टैंडर्ड किट होता है। अमेरिका में तो स्टैंडर्ड किट होता करता। इसीलिए सैम पिट्रोडा जी बहुत, जो कांग्रेस के साथ भी बहुत काम कर चुके हैं, राजीव गांधी जी के समय से, पिट्रोडा जी बार बार कहते रहे हैं कि हमारे देश में कारपेंटर के लिए एक स्टैंडर्ड किट होना चाहिए, प्लम्बर के लिए एक स्टैंडर्ड किट होना चाहिए, टेलर के लिए एक स्टैंडर्ड किट होना चाहिए। तब वो कुशल कारीगर को प्रोत्साहन मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन के लिए एक किट होना चाहिए। तो स्किल ट्रेनिंग, कुशलता, कुशल रोजगार हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम मजदूरी दे सकते हैं, नरेगा मजदूरी देता है, कुशल रोजगार नहीं देता। कुशल रोजगार देने के लिए हमें और कोई विकल्प ढूंढने की जरूरत है। So that the baseline has to be brought up. Skilled employment is very important. आगे जाते हुए मेजर चैलेंज क्या देखते हैं आपके मिनिस्ट्री की तरफ से? जैसा कि मैंने कहा, हमारे देखिए चुनौतियां तो पुरानी हैं, गरीबी, बेरोजगारी, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, ये सब तो पुरानी चुनौतियां हमारी।
पर जो साधन हम अपनाते हैं वो अलग अलग होते हैं। और मैं समझता हूँ ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना, लोकल आबादी को और जिम्मेदार ठहराना, ये जो भावना कई जगहों में है कि सिर्फ सरकार आपको नल देगी, हैंडपंप देगा, सिर्फ सरकार के माध्यम से काम होगा, इससे हमें हटना होगा। सरकार की भूमिका है, केंद्र सरकार की भूमिका है, राज्य सरकार की भूमिका है, पर ग्रामीण विकास में जब तक ग्राम पंचायत और ज़िला पंचायत और पंचायत समिति और सशक्त और मजबूत नहीं बनेगी तो ये ग्रामीण विकास के कार्यक्रम सफल तरीके से हम लागू नहीं कर पाएंगे।